Hello everyone, today we are going to discuss about concentration terms of chapter 1. Students, this is the last topic of this chapter and it is the most important part of this chapter. Okay, so what do you understand by concentration term? Let's suppose here I am taking two beakers and I am filling water in it. Equal amount of water I am filling in both the beakers. In both the beakers I am filling equal amount of water. Okay, now in first beaker let I am adding 1 spoon of sugar, whereas in another beaker I am adding 10 spoons of sugar. Okay, so in both the cases I will get solution. Here also I am going to get solution. So this component is what? Solvent. This water is what? Solvent, whereas the sugar is solute. Here also it is solvent and this sugar is solute. When we are mixing solute in the solvent, I am getting what? Solution. In both the cases, these are the solutions. Now, when I compare the concentration of these two solutions, we can say that this is less concentrated, it is less concentrated solution, whereas the concentration of this solution is more concentrated solution. Okay, now in this concentration term, what you are going to find out? You are going to find out through this concentration term that how much amount of solute is added, how much amount of solute is added in the solvent. Okay, so here there are various methods for finding out the concentration of the solution. So we are going to discuss it one by one. Okay students, here we are going to discuss first method of finding out concentration. पहला मेथड यहाँ पे लिखा है बच्चों मैंने, मास बाय मास परसेंटेज, इसको रिप्रेजेंट करते हैं W बाय W परसेंटेज. ओके, तो यहाँ पे हम इसको निकालने का व्हाट इज द फॉर्मूला, दैट इज मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100. तो इस तरीके से हम मास बाय मास परसेंटेज निकालते हैं बच्चों. तो लेट्स सपोज एक न्यूमेरिकल हम सॉल्व कर लेते हैं. न्यूमेरिकल इज कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन. बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है बेटा C6H6. ओके, एंड CCl4 if 22 grams of benzene is dissolved in 122 grams of CCl4. ओके, तो इस क्वेश्चन में आपको किस तरीके से इसको सॉल्व करना है बच्चों. आपको मास परसेंटेज निकालने के लिए बोला गया है बेंजीन का एज वेल एज CCl4 का. ओके, तो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, वी आर गोइंग टू चेक विच वन इज सॉल्वेंट एंड विच इज सोल्यूट. तो बच्चों यहाँ पे बेंजीन इज डिजॉल्व, इट मीन्स बेंजीन हियर इज व्हाट, सोल्यूट, वेयर इज CCl4 इज व्हाट, solvent. Another method of checking which is solute and which is solvent, the substance which is present in lesser amount, that is our solute. Okay, and the substance which is present in more amount, that would be solvent. तो यहाँ पे हम फॉर्मूला, ये फॉर्मूला लिखेंगे बेटा, वेट बाय वेट परसेंट ऑफ बेंजीन, ये हम फाइंड आउट कर रहे हैं यहाँ पे.
तो कैसे निकाल रहे हैं, मास ऑफ सोल्यूट. तो मास ऑफ सोल्यूट गिवन हियर इज 22 ग्राम. तो 22 अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन. तो मास ऑफ सोल्यूशन, दिस इज व्हाट, दिस इज मास ऑफ सॉल्वेंट. तो मास ऑफ सोल्यूशन कैसे निकाल रहे हैं, मास ऑफ सोल्यूशन किस तरीके से निकालेंगे बेटा, मास ऑफ सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट. तो 22 हमारे पास सोल्यूट है एंड 122 ग्राम हमारे पास सॉल्वेंट है. तो इसको सॉल्व करके आ रहा है आपका 144 ग्राम्स. तो 144 ग्राम्स क्या हो गया बच्चों, मास ऑफ सोल्यूशन. तो यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे और इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे. ओके, तो लेट्स सॉल्व इट. 11 ज़ा 7 एंड sorry, okay, 7 and 2. ठीक है. Now further we can solve it. 250 is a 3 is a 6 and 6. 225 is a and 2 18 is a. Okay. तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, 11 into 25. 11 5 is a 55 and 11 2 is a 22 plus 5 27 डिवाइडेड बाय 18. तो इसको हम 18 से डिवाइड करेंगे. 275, 18 1 ज़ा 18, 17 9 and here 5 5 ज़ा 90 और here 5.0 36 14. ओके, तो ये लेट्स सपोज हम इतना ही वैल्यू ले रहे हैं बच्चों. तो आई एम गेटिंग हियर 15.2% ऑफ C6H6 हमें मिल रहा है. ओके, तो दिस इज द वेट बाय वेट परसेंटेज ऑफ C6H6. नाउ नेक्स्ट इज इन द सेम क्वेश्चन आपको क्या पूछा गया बेटा, वेट बाय वेट परसेंटेज ऑफ, आपको पूछा गया CCl4. CCl4 का वेट बाय वेट परसेंटेज पूछा गया. तो हियर व्हाट यू आर गोइंग टू डू, यहाँ पे आप लिखेंगे वेट ऑफ CCl4 दैट इज 122 अपॉन वेट ऑफ सोल्यूशन अभी हमने निकाला था 144 मल्टीप्लाई बाय 100 एंड नाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व दिस वैल्यू. You will get the weight by weight percentage of CCl4. The another way of solving this is, because we are talking about percentage और यहाँ पे हम out of 100 ले रहे हैं बच्चों. 100 में से आपके पास अभी हमने निकाला 15.2%. तो हमारे पास क्या है, इसका मतलब 15.2 ग्राम्स हमारे पास क्या है, बेंजीन के हैं आउट ऑफ 100. तो इस यहाँ पे हम निकाल सकते हैं CCl4 का परसेंटेज. ओके, तो ये हो जाएगा 8 एंड देन यहाँ पे 9 4 एंड 9 8. तो 84.8% हमारे पास वेट बाय वेट परसेंटेज ऑफ आ गया हमारे पास CCl4. ओके, तो दिस वे वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस. Now another term we are going to discuss here is concentration term जो हमारे पास है बेटा, mass by volume percentage. यहाँ पे हम लिख रहे हैं in place of mass volume. यहाँ पे हम करेंगे mass by volume. ओके, तो ये कैसे निकालेंगे बच्चों, फॉर्मूला इज mass of solute. तो यहाँ पे in place of mass हम लिखेंगे volume of solution. वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100. तो इस तरीके से हम मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज निकाल लेते हैं. ओके, तो फॉर द प्रॉब्लम द क्वेश्चन ऑफ दिस टाइप वी विल डिस्कस इन लेटर. ओके, तो नेक्स्ट टाइप ऑफ पहले कंसंट्रेशन टर्म डिस्कस कर लेते हैं बच्चों. अनदर कंसंट्रेशन टर्म इज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम. वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज. वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज में हमें यहाँ पे लिखेंगे बच्चों वॉल्यूम ऑफ solute upon volume of
सोल्यूशन इनटू 100। तो इस तरीके से हम वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज से भी कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं सोल्यूशन की। नाउ नेक्स्ट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे बच्चों, मोल फ्रैक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है यहाँ पे हमारे पास मोल फ्रैक्शन। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बेटा एक्स से। ओके, तो मोल फ्रैक्शन के लिए जो फॉर्मूला होता है दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट अपॉन टोटल number of moles present in solution। तो इस तरीके से हम मोल फ्रैक्शन निकालते हैं। लेट सपोज मैं बोल रही हूँ एक्स ए मोल फ्रैक्शन किसी ए कंपोनेंट का है, और इसको मैं कह रही हूँ दिस इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। एक्स ए अगर मैंने लिखा है तो इसका मतलब क्या रिप्रेजेंट कर रही हूँ बच्चों, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। वेयर एज एक्स बी अगर मैं लिख रही हूँ तो इसको अगर मैं बोल रही हूँ इट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। ओके, तो अगर मुझे एक्स ए निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकालना है अगर मुझे, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट। अभी हम किसका मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं बच्चों, सॉल्वेंट का। तो ऊपर किसके मोल्स आएंगे, ऊपर आएंगे हमारे पास सॉल्वेंट के मोल। तो यहाँ पे एन क्या रिप्रेजेंट करता है बच्चों, एन को हम बोलते हैं मोल्स। तो मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अगर मैं Na लिखी हूँ तो Na का मतलब है बच्चों नंबर ऑफ मोल्स, और Na अगर मैं लिख रही हूँ तो ये हो जाएगा हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। वेरेस अगर मैं Nb लिख रही हूँ तो Nb का मतलब है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। इज इट क्लियर टू यू? ओके, तो अभी हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकालना है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में हमारे पास किस किस चीज़ के मोल्स हैं, सॉल्वेंट के मोल हैं एंड सोल्यूट के मोल हैं। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं Na प्लस Nb। तो इस तरीके से हम मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकालते हैं बच्चों। इसी टाइप से अगर मुझे मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट निकालना है तो ऊपर किसके मोल्स रखूंगी, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल मोल्स ऑफ सोल्यूशन। तो टोटल मोल ऑफ सोल्यूशन मेरे पास क्या आ रहा है बच्चों, इस तरीके से। ओके, तो इस तरीके से हम मोल फ्रैक्शन निकालते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो टोटल जो मोल फ्रैक्शन है हमारे पास बच्चों, मोल फ्रैक्शन है दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट आता है and which is equals to 1. This is most important relation. Okay, suppose मुझे मोल फ्रैक्शन ऑफ A की पता चल गया है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ B मैं इस फॉर्मूले में लगा के निकाल सकते हो। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ B, यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं बच्चों, टोटल 1 होगा। तो अगर मुझे A का पता है तो हम B का निकाल सकते हैं, या B का पता है तो A का निकाल सकते हैं। तो 1 माइनस XB से भी हम मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं, और या फिर हम ये मेथड यूज़ करेंगे। अगर ए कंपोनेंट का हमें मोल फ्रैक्शन पता है तो हम डायरेक्टली इस फॉर्मूले से अनदर कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। ओके, तो इससे रिलेटेड हम अभी न्यूमेरिकल करेंगे। वी विल सी हाउ टू सॉल्व concentration, how to find out the concentration by using mole fraction. Okay, here I have taken one numerical 30 grams of यूरिया का मॉलिकुलर फॉर्मूला होता है बेटा NH2CO NH2।
is dissolved in 45 grams of water. Find out the mole fraction of urea and water. आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया एंड वाटर निकालना है. तो आप सबसे पहले देख लें बच्चों, यहाँ पे हमारे पास जो यूरिया है इट इज व्हाट, सोल्यूट, वेयर इज वाटर क्या है यहाँ पे हमारे पास बच्चों, सॉल्वेंट. ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले हम निकालेंगे और इसको मैं रिप्रेजेंट करूंगी मोल फ्रैक्शन. अगर मैं बोल रही हूँ तो इसको XB से रिप्रेजेंट कर दूंगी, एंड मोल फ्रैक्शन अगर मुझे वाटर का निकालना है तो इसको XA से रिप्रेजेंट करूंगी. ओके, तो यहाँ पे देखेंगे बच्चों, हमें नंबर ऑफ मोल्स पहले निकालने पड़ेंगे यूरिया के. तो उसको निकालने से पहले हम देखते हैं जो यूरिया है हमारे पास है NH2CO NH2. तो इसका पहले हमें मोलर मास निकालना होगा. मोलर मास कैसे निकालेंगे बच्चों, हमारे पास नाइट्रोजन के 2 एटम्स हैं, एक ही है और एक ही है. तो 14 इंटू 2 प्लस हाइड्रोजन के हमारे पास 2 यहाँ हैं 2 यहाँ, टोटल 4 हो गए. 1 इंटू 4 प्लस हमारे पास कार्बन है, कार्बन का 12 और एक ऑक्सीजन का एटम है हमारे पास 16. 28 प्लस 4 प्लस 12 प्लस 16. तो कितना आ रहा है 8 16 प्लस 4 20 0 2 2 3 4 5 6. तो इतने ग्राम, तो हमारे ग्राम से हमारे पास क्या आ रहा है बच्चों, यूरिया का मोलर मास आ रहा है. तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया निकाल सकते हैं. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया क्या जाएगा, गिवन मास ऑफ यूरिया अपॉन इट्स मोलर मास. तो गिवन मास हमारे पास कितना है बच्चों 30 एंड मोलर मास हमारे पास आ गया 60. तो इसको सॉल्व करेंगे 1/2 एंड विच इज 0.5 मोल्स. तो इतना 0.5 मोल्स हमारे पास यूरिया आ गया. ओके, अब हमें क्या निकालना है बच्चों, हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर भी निकालना होगा. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास पता है हमें गिवन कितना है 45 ग्राम्स है. तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे, मोलर मास ऑफ वाटर. तो यहाँ पे हम निकालेंगे मोलर मास ऑफ वाटर. क्या आता है, आप सबको अभी तक याद हो गया होगा, मोलर मास ऑफ वाटर कितना आता है बेटा 18. कैसे निकाला, 1 इंटू 2 प्लस 16 जो कि हमारे पास आ रहा है 18 ग्राम. ओके, तो यहाँ पे हम निकाल रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर. क्या जाएगा, गिवन मास कितना है 45 डिवाइडेड बाय 18. 3 से सॉल्व हो रहा है, 15 ज़ा एंड 6 ज़ा. तो ये आ जा रहा है हमारे पास 2 ज़ा 12 3 5. तो 2.5 मोल्स हमारे पास किसके आ गए बच्चों, वाटर के आ गए. ठीक है, तो वाटर के मोल्स इतने हैं और हमारे पास यूरिया के मोल इतने हो गए. तो अब हम मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं ऑफ यूरिया. तो आई एम राइटिंग हियर, अब मैं बोल रही हूँ मोल फ्रैक्शन मैंने इस तरीके से रिप्रेजेंट करा, मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर. तो इसको मैं ए से रिप्रेजेंट कर रही हूँ. ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कितने आए हमारे पास यूरिया के 0.5 आया, वेयर एज यहाँ पे हमारे पास मोल्स कितने हैं इसके 0.5 प्लस यहाँ पे हमारे पास है बच्चों 2.5. तो कितना आ रहा है 0.5 एंड 3 आ गया. ओके, नाउ जस्ट सॉल्व इट. ओके, तो यहाँ पे 3 0.1 6 एंड 6. तो इतना है यहाँ पे हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया हमारे पास निकल के आया बच्चों 0.11166. ओके, अब हमें निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर. मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, तो हम निकाल रहे हैं बच्चों मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट. सॉल्वेंट हमारे पास वाटर है, तो दैट वुड बी मोल्स ऑफ वाटर
और सॉल्वेंट अपॉन टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, तो A प्लस NB। तो यहाँ पे हम निकालेंगे बच्चों 2.5 हमारे पास था, 2.5 डिवाइडेड बाय 0.5 प्लस 2.5, कितना आ रहा है हमारे पास 2.5 डिवाइडेड बाय 3। तो ये हम जब इसको सॉल्व कर रहे हैं तो हमारे पास आ जाएगा बच्चों 8 ओके। तो अराउंड दिस मच वी आर गेटिंग। तो इस तरीके से हमने देखा बच्चों मोल फ्रैक्शन ऑफ हमने निकाला है यूरिया एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर हमारे पास निकल के आ गया है। तो इसी को हम दूसरे तरीके शॉर्टकट मेथड से कर सकते हैं। अभी हमने रिलेशन देखा था बच्चों, टोटल मोल फ्रैक्शन हमारे पास, टोटल मोल्स कितने होते हैं हमारे पास, दैट इज यहाँ पे हम XA प्लस XB which is equals to mole fraction of solute and mole fraction of solvent is equals to 1। तो ये हमारे पास ऑलरेडी हमने ये कैलकुलेट करा था यहाँ पे, जिसकी वैल्यू 0.166 थी। तो XA को हम इस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते थे बच्चों। तो XA हमारे पास क्या आ जाता 1 माइनस 0.166। तो ये कितना आ रहा है 10 में से 4, 10 में से 4, 9 में से 3 एंड यहाँ पे आ गया 9 में से 1 गया 8। ओके यहाँ पे हमारे पास आ रहा है बच्चों ये 3। ओके तो एंड 0। तो हमारे पास ए का जो XA है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट हम इस तरीके से भी निकाल सकते थे। 1 में से हमने जो यूरिया के मोल फ्रैक्शन निकला था उसको माइनस कर दिया, तो वी आर गेटिंग द सेम वैल्यू। ओके, तो इन दिस वे वी कैन सॉल्व these kinds of questions. Now we will discuss another two very important terms of finding out the concentration. तो ये terms हमारे पास है बच्चों, that is molarity and molality. ओके स्टूडेंट, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मोलारिटी। मोलारिटी को हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके तो व्हाट इज मोलारिटी? मोलारिटी हमारे पास होती है बच्चों नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। तो इस तरीके से हम निकालते हैं मोलारिटी। वेयरएज मोलैलिटी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म हमारे पास है बच्चों कंसंट्रेशन फाइंड आउट करने की। मोलैलिटी, व्हाट इज द डिफरेंस इन स्पेलिंग? दिस इज मोलैरिटी RITY, वेयरएज दिस इज मोलैलिटी LALITY, मोलैलिटी। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम स्मॉल m से, वेयरएज मोलैरिटी को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं बच्चों कैपिटल M से। तो ये कैसे निकाला जाता है स्टूडेंट्स? ये हम निकालते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। ऊपर वाली टर्म तो सेम रहती है, लेकिन नीचे हम लिखेंगे मास ऑफ, यहाँ पे हम बात करेंगे बच्चों मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के मास की बात करेंगे, मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। ओके, तो मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg अगर हम ले रहे हैं तो यह हम बात कर रहे हैं मोलैरिटी की। तो इन सारे जितने भी अभी तक हमने टर्म्स पढ़ी, कौन कौन से टर्म्स पढ़ी? हमने पढ़ी बच्चों वेट परसेंटेज की बात करी, दूसरा हमने करा वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज की बात करी, थर्ड हमने डिस्कस करा बच्चों वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज की बात करी हमने, फोर्थ टर्म हमने डिस्कस करा मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन की बात करें, और इसको हम बोल सकते हैं हमने XA मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ, हमने यहाँ पे बात करी थी सोल्यूट की बात करी थी।
तो इस तरीके से भी हम कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं। फिफ्थ हमने डिस्कस करा है यहाँ पे मोलैरिटी, एंड सिक्स्थ कंसंट्रेशन टर्म जो हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे दैट इज मोलैलिटी। तो ये यहाँ पे हमने डिस्कस करा है 6 टाइप की कंसंट्रेशन टर्म। यहाँ पे नॉर्मेलिटी भी होता है बच्चों। नॉर्मेलिटी का टर्म आप जब हम प्रैक्टिकल करेंगे उस समय हम सीखेंगे नॉर्मेलिटी हम से रिलेटेड क्वेश्चन किस तरीके से किया जाता है। ओके, तो अब हम डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस जिसमें हम इन वेरियस टर्म्स का यूज करते हुए कंसंट्रेशन निकालेंगे। Okay students, here I have taken one question where you are going to find out all these terms. The question है बच्चा 5 moles of glucose are dissolved in 2 liters of water if density of resulting solution is 1.5 gram per ml. Then find out, पहले आपको निकालना है weight by volume percentage, then weight by weight percentage, then molarity capital M, and at the end आपको निकालना है molality. तो वन बाय वन वी विल सी। तो वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज हम निकालेंगे, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ओके, तो आपको क्या चाहिए बच्चों, वेट ऑफ सल्यूट। तो सल्यूट आपके पास क्या है, ग्लूकोज। तो सल्यूट किस तरीके से निकलेगा बच्चों, आपको मोल्स पता है, तो मोल्स आपको पता है। और ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आता है C6H12O6। इसका सबसे पहला मोलर मास निकालेंगे 12 कार्बन का, क्योंकि 6 एटम है, मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 1 हाइड्रोजन के एटम का मोलर मास एंड 12 एटम है इसलिए मल्टीप्लाई बाय 12 प्लस हमारे पास है 16 इंटू 6, 72 प्लस 12 96, 6 7 8 9 10। ओके, तो इतना ग्राम हमारे पास आ रहा है ग्लूकोज का मोलर मास। ओके, तो आपको क्या दे रखे हैं बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हैं। तो नंबर वेट आपको निकालना है, मास ऑफ C6H12O6 in 5 moles। किस तरीके से निकालेंगे बेटा, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास है 5 इंटू मोलर मास हमारे पास आया 180 ग्राम। तो 18 5 ज़ा 90। तो इतने ग्राम हमारे पास क्या आ गया, मास ऑफ सल्यूट आ गया, मास ऑफ सल्यूट। तो मास ऑफ सल्यूट हम यहाँ पे रख देंगे। ओके, तो यहाँ पे मास ऑफ सल्यूट, तो वेट बाय वेट परसेंटेज हम वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज निकाल रहे हैं बच्चों। तो मास ऑफ सल्यूट हमारे पास आ गया 900 ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन यहाँ पे दे रखा आपको 2 लीटर्स। तो 2 लीटर्स में अगर इसको ml में कन्वर्ट करूँ तो 2000 ml मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, तो यहाँ पे वेट ऑफ सल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हमने लिखा। इसको सॉल्व करते हैं। 4 ज़ा 8 1 5 ज़ा। ओके, तो वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज हमारे पास आ रहा है 45%। तो ये हमने निकाल दिया बच्चों, यहाँ पे 45% हमारे पास इसका आंसर आ रहा है ना। दूसरा टर्म हम देख रहे हैं यहाँ पे वेट बाय वेट का। तो वेट बाय वेट परसेंटेज निकाल लेंगे हम। तो वेट बाय वेट परसेंटेज में हमें क्या चाहिए, वेट ऑफ सल्यूट। तो वेट ऑफ सल्यूट हमने अभी निकाला था बच्चों 900 ग्राम। इसको मैं इरेज कर रही हूँ। वेट ऑफ सल्यूट हमारे पास आया है 900 ग्राम्स अपॉन वेट ऑफ सोल्यूशन। यहाँ पे हमारे पास वेट ऑफ सोल्यूशन लिखते हैं इंटू 100 लिखते हैं हम। ठीक है, तो वेट ऑफ सोल्यूशन हमें यहाँ पे कहीं मिल रहा है, देखो हमारे पास यहाँ पे वॉल्यूम दे रखे हैं एंड हियर डेंसिटी इज गिवन टू अस। तो हमारे पास डेंसिटी होती है बच्चों दैट इज मास ऑफ सोल्यूशन
अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ओके। तो डेंसिटी आपको दे रखी है 1.5, मास ऑफ सॉल्यूशन आपको यहाँ पे आपको मास ऑफ सॉल्यूशन निकालना है और वॉल्यूम आपको दे रखा है 2 लीटर्स। तो इसको अगर मैं ml बिकॉज इट इज गिवन इन ml, तो यहाँ पे भी हम ml में लिखेंगे। तो मास ऑफ सॉल्यूशन यहाँ से मेरे पास आ रहा है मास ऑफ सॉल्यूशन 1.5 इंटू 2000। तो ये कैलकुलेट करके आ रहा है 15 टू 30। तो यहाँ से 1 डेसिमल लग गई। तो इतना हमारे पास आ रहा है ग्राम, 3000 ग्राम हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूशन आ रहा है। तो यहाँ पे हमने वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन विच इज 3000 मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, नाउ सॉल्व दिस। 3 3 is 9। तो 30% हमारे पास आ गया बच्चों वेट बाय वेट परसेंटेज। तो दूसरा कैलकुलेशन हमने करा है यहाँ पे, वेट बाय वेट परसेंटेज हमारे पास कैलकुलेट करके आ रहा है 30%। ओके, नाउ नेक्स्ट टर्म हमने कैलकुलेट करनी है यहाँ पे मोलैरिटी। तो मोलैरिटी हम निकाल रहे हैं थर्ड टर्म मोलैरिटी। मोलैरिटी के लिए हमने फॉर्मूला देखा था मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। ओके, मोल्स ऑफ सोल्यूट आपको दे रखे हैं यहाँ पे 5 मोल्स। तो हियर आई एम राइटिंग 5। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, तो आपको दे रखा है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और ये भी लीटर में ही दे रखा है आपको। तो 2 डायरेक्टली आप यू विल पुट दिस वैल्यू। तो यहाँ पे आ रहा है हमारे पास 2.5 मोलर सॉल्यूशन। ठीक है, तो आंसर हमारे पास आ रहा है बच्चों। तो ये आ गया हमारे पास 2.5 मोलर सॉल्यूशन। ठीक है, इसको हम बोलेंगे 2.5 मोलर सॉल्यूशन। तो इसका वैल्यू क्या आ रहा है 2.5 मोलर सॉल्यूशन आ रहा है। या इसकी यूनिट हम लिख सकते हैं और मोल्स पर लीटर, इसको यूनिट हम लिख सकते हैं मोल्स पर लीटर। इतने मोल्स आ रहे हैं बच्चों 2.5 मोल्स पर लीटर सॉल्यूशन में। ओके, लास्ट टर्म हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे मोलैलिटी। तो मोलैलिटी हम किस तरीके से निकालेंगे, मोल्स ऑफ सोल्यूट और वॉल्यूम के बदले यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। केजी भी सॉल्वेंट का मास। ओके, ये बच्चों आपको मोल्स पता है, यहाँ पे मोल्स कितने दे रखे हैं आपको 5 मोल्स ना। मास ऑफ सॉल्वेंट आपको कैलकुलेट करना है। तो मास ऑफ सॉल्वेंट आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपको डेंसिटी पता है, ठीक है, एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पता है। तो अभी हमने डिस्कस करा था डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ओके, तो यहाँ पे आपको मास ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट करना था और अभी हमने जो मास ऑफ सॉल्यूशन हमने निकाला था दैट वाज 1.5 इंटू वॉल्यूम 2000 ml लिया था और यहाँ निकल के आया था बच्चों हमारे पास 3000 ग्राम हमारे पास। दिस इज मास ऑफ सॉल्यूशन निकल के आता है। यहाँ पे आपको मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, ठीक है। तो मास ऑफ सॉल्वेंट हम कैसे निकालेंगे बच्चों, अगर मैं सॉल्यूशन के मास में से सोल्यूट का मास माइनस कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मास ऑफ, यहाँ पे हम देख रहे हैं मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सोल्यूट। मास ऑफ सोल्यूट कैसे निकालेंगे हम, हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स हैं सोल्यूट के और हमारे पास क्या है बच्चों, इसका मोलर मास अभी हमने निकाला था
C6H6 का मोलर मास हमने निकाला था 180 ग्राम, ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं। ठीक है, तो मास ऑफ सोल्यूट कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ मोल्स 5 इंटू 180 मोलर मास, इस तरीके से हम मास ऑफ सोल्यूट निकाल देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे करिए बच्चों, 18 5 से 900 ग्राम्स हमारे पास आ रहा है। तो मास ऑफ सॉल्वेंट हम निकाल सकते हैं कैसे, दैट इज मास ऑफ सॉल्यूशन 3000 माइनस मास ऑफ सोल्यूट 900। अब इसको कैलकुलेट करिए, 0 0 9 में से 10 में से 1 एंड 2, तो इतने ग्राम हमारे पास क्या आ जा रहा है बच्चों, दिस इज व्हाट मास ऑफ सॉल्वेंट हमारे पास आ गया है। तो 2100 ग्राम्स हमारे पास क्या आ रहा है, मास ऑफ सॉल्वेंट। आई विल प्लेस दिस वैल्यू हियर। ओके, तो अब देखते हैं किस तरीके से यहाँ पे हम निकालेंगे इसको। तो यहाँ पे कैलकुलेट करके आ रहा है मेरे पास 2100, दिस इज इन ग्राम। ठीक है, तो इसको केजी में कन्वर्ट करेंगे, तो डिवाइडेड बाय 1000 करूँगी मैं इसको, तो 1000 यहाँ पे डिवाइड करूँगी तो यहाँ जाके ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा बच्चों, इस तरीके से। ठीक है, तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे दिस वे, तो आई एम गेटिंग 50 डिवाइडेड बाय 21। ओके, नाउ सॉल्व इट। 50 डिवाइड करना आपको, 1 ज़ा 21, सॉरी 2 ज़ा चला जाएगी, 2 ज़ा 42, 8.0, ये 3 ज़ा जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो अराउंड 2.3 हमारे पास क्या आ रहा है, 2.3 जो मोलालिटी हमारे पास आ रही है इतने मोलल सॉल्यूशन। व्हाट इज द मोलालिटी ऑफ दिस, द मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज 2.3 मोलल। और इसको हम इसके लिए एक और यूनिट यूज कर रहे हैं, तो आंसर हमारे यहाँ पे लिखे हुए 2.3 मोल्स पर केजी। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे इसकी मोलालिटी निकाली। तो इन दिस वे स्टूडेंट वी हैव डिस्कस वेरियस कॉन्सेप्ट्स ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स। तो आपको आइडिया हो गया होगा बच्चों किस तरीके से हम कंसंट्रेशन टर्म्स का यूज़ करते हैं और अपने कैलकुलेशंस करते हैं। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। जस्ट प्रैक्टिस लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस रिलेटेड टू कंसंट्रेशन टर्म्स, और आपको अगर कुछ भी प्रॉब्लम होते हैं तो यू कैन टेल मी। ओके, and this way we have completed this whole chapter. I'm just requesting you to go through the chapter, make your proper notes, and revise all the notes and practice all the questions given in the NCERT. Okay, thank you so much.